تو جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ شارٹ پٹ ہے. شارٹ پٹ جو ہے ٹریک اینڈ فیلڈ کا ایونٹ ہے جس میں ہم پٹ کرتے ہیں. شارٹ کہتے ہیں گولے کو یا سفیریکل ہوتا ہے بال کی طرح لیکن ہیوی ہوتا ہے, اس کو پٹ کیا جاتا ہے. اب لفظ پٹنگ ہے, تھرو کرنا اور پٹ کرنا اس میں فرق ہے. تھرو میں جب کوئی چیز جو کرتے ہیں تو اس میں تھرو میں کیا ہے کہ ہم اپنی باڈی کے لیول سے اس کو پیچھے لے کر جا کے اپنا جو مومنٹم ہے وہ بناتے ہیں اور اس کو آگے کی جانب پھینکتے ہیں. جبکہ پٹ کرنے میں ہم اپنے جو ہینڈ ہے اس کو اپنی باڈی کے پیچھے لے کر جا کے مومنٹم اس کا نہیں بنا سکتے. ایک مخصوص پوزیشن ہے وہیں پر رکھتے ہوئے جو گولا ہے اس کو پٹ کیا جاتا ہے. اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو فاصلہ ہے وہ طے کرے. جو بھی آبجیکٹ ہم پھینک رہے ہیں شارٹ تو وہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرے. تو ہومر نے اس کو مینشن کیا ہے کمپٹیشن کو کہ یہ جو کمپٹیشن تھا اینشینٹ گریک میں جو راک تھروئنگ تھی, یعنی کہ جو چٹانیں تھیں یا بڑے بڑے پتھر تھے ان کو پھینکا جاتا تھا. جو وہاں کے جو فوجی تھے وہ پھینکتے تھے, لیکن وہ کس ویٹ کے تھے اس طرح کا جو کوئی بھی ریکارڈ یا ایویڈنس نہیں ملتی. جو پہلی ایویڈنس ملتی ہے سٹون کی یا ویٹ تھروئنگ کی وہ ملتی ہے ہمیں اسکاٹش سے. اسکاٹ لینڈ جو ہے وہاں یہ جو اس کے ایونٹ ہے وہ ہوتے رہے ہیں, تو وہاں سے اس کی جو ایویڈنس ہیں وہ ملتی ہیں. اس کے علاوہ فرسٹ ایونٹ جو ہے ریزمبلنگ دا ماڈرن شارٹ پٹ, جو آج کل جو کھیلا جاتا ہے شارٹ پٹ اسی کے ساتھ ملتا جلتا جو کھیل ہے وہ کھیلا جاتا رہا ہے. مڈل ایجز وین سولجر ہیلڈ کمپٹیشن ان وچ دے ہیلڈ کینن بال کے ساتھ, اس کو کینن بال ہوتی تھی اس کو پھینکتے تھے. اسی طرح کا جو تھا وہ ان کا طریقہ تھا. تو شارٹ پٹ کا جو کمپٹیشن ہے یہ 19ویں صدی سے اس کا آغاز کیا گیا, 19ویں صدی کے درمیان سے. اور یہ برٹش میچور چیمپئن شپ کا بھی یہ گیمز حصہ شارٹ پٹ رہی ہے 1866 میں. تو جو میل کے لیے اگر دیکھا جائے تو شارٹ پٹ کو اولمپکس گیم کی جو ابتدا ہے ماڈرن اولمپکس گیم 1896 سے, تو پہلے سال سے ہی جو شارٹ پٹ ہے پہلے ایونٹ سے ہی جو شارٹ پٹ اس کا حصہ رہی ہے. جو خواتین کا شارٹ پٹ کا ایونٹ ہے وہ 1948 میں اس کو اولمپکس میں انکلوڈ کیا گیا. جو اس وقت ورلڈ ریکارڈ ہے مین کا ریان کرسر ہے 23.56 میٹر کی دوری پر انہوں نے جو گولا ہے اس کو پھینکا ہے. 2023 میں ہی 70 فٹ جو ہے یہ ریکارڈ بنا ہے, ورلڈ ریکارڈ ہے. تو جو وومن ہے نتالیہ 22.63 میٹر گولا پھینک چکی ہیں. اب ان میں اور دونوں میں فرق تھوڑا سا ہے لیکن ویٹ کا فرق ہے. جو مردوں کا گولا ہے اس کا ویٹ اور ہے, وومن کے جو گولا ہے شارٹ ہے اس کا ویٹ اور ہوتا ہے. تو اس لیے 22.63 میٹر یہ ہے 74 فٹ بنتا ہے. 1987 میں یہ ریکارڈ جو تھا وہ قائم کیا گیا. اسی طرح اولمپک ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو وہ 2021 یعنی کہ اسی اولمپکس میں ٹوکیو اولمپکس جسے کہا جاتا ہے, ویسے تو ٹوکیو 2020 ہے لیکن چونکہ انعقاد 2021 میں کیا گیا تھا تو 2021 بھی لکھا جاتا ہے. تو 23.30 میٹر کے فاصلے کے اوپر انہوں نے یہ گولا پھینکا تھا جو کہ تقریباً 76 فٹ 5 انچ کے قریب بنتا ہے. ریان کرسر ہی ہے. تو اس کے بعد جو خواتین ہیں ان میں الیونا پیانک ہے 22.41 میٹر کے جو فاصلے کے اوپر انہوں نے اولمپکس میں گولا پھینکا 1980 میں. 73 فٹ 6 انچ جو ہے ان کا اولمپک ریکارڈ ہے اور ابھی تک کوئی اس کو بریک نہیں کر سکا. تو شارٹ پٹ کا جو سیکٹر ہے جہاں سے گولا پھینکا جاتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر. جو سرکل ہے تھروئنگ سرکل اس کو کہا جاتا ہے. تھروئنگ سرکل بالکل فلیٹ ہوتا ہے اور کنکریٹ کا بنا ہوتا ہے. اس کا جو انر ڈایامیٹر ہے آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک نظر آ رہا ہے 2.135 میٹر یہ ڈایامیٹر ہوتا ہے. اور یہ جو لائنیں ہیں تمام لائنیں جتنی بھی ہیں وہ 5 سینٹی میٹر یا 50 mm اس کو کہا جا سکتا ہے. 50 mm یا 5 سینٹی میٹر موٹی جو لائنیں ہیں وہ لگائی جاتی ہیں اور جو لائن درمیان کو ظاہر کرتی ہے اگر بالکل سرکل کے درمیان میں لائن نہیں لگائی جاتی لیکن سرکل کے باہر کی طرف دونوں سائڈوں کے اوپر 75 سینٹی میٹر یا 0.75 میٹر جو ہے وہ لمبی لائنیں دونوں طرف لگائی جاتی ہیں. شارٹ پٹ واحد ایونٹ ہے جس میں آگے سٹاپ بورڈ بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ تھرو میں جو سٹاپ بورڈ ہے وہ استعمال
नहीं होता, ना डिस्कस में ना हैमर में। तो इसमें स्टाफ बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी आगे हम डायमेंशन पढ़ते हैं कि दरमियान से ये 11.2 सेंटीमीटर होती है और साइड से ये 30 सेंटीमीटर की विड्थ होती है। जो लंबाई है वो 1.21 से लेकर 1.22 मीटर तक हो सकती है, यानी कि 1 mm का फर्क हो सकता है। तो आगे सेक्टर का जो एंगल बनाया जाता है 34.92 दर्जे का होता है। ये एंगल कैसे बनाया जाएगा उसको मैं आपको बताऊंगा। आपकी जो असाइनमेंट है कल लेक्चर से पहले आपने इसकी जो तस्वीर है वो आपने बनानी है अकॉर्डिंग टू स्केल, और आपने मुझे जो है वो जो हमारा ग्रुप है उसमें आपने इसको फॉरवर्ड करना है। तो एक्यूरेट जो है वो मेजरमेंट आपने लेनी है। तो जो थ्रोइंग सर्कल है इसके इर्द गिर्द जो है वो रिम होता है। रिम जो है वो लोहे का बना हो सकता है या स्टील का बना हो सकता है या इसी तरह के किसी दूसरे मटेरियल का बना हो सकता है। ये कौन सा है, ये जो आपको डबल नजर आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये एक यहाँ पर रिम मौजूद है। तो रिम जो है इसकी जो मोटाई है वो 6 mm होनी चाहिए और थिकनेस इसकी जो, और ये वाइट कलर का ही होता है। ग्राउंड सराउंडिंग जो सर्कल है वो कंक्रीट का बना होता है, यानी कि उसके सिर्फ अंदर वाली साइड नहीं बल्कि जो बाहर भी है वो भी कंक्रीट का या सिंथेटिक या एस्फाल्ट वुड और इसी तरह के किसी दूसरे मटेरियल का बना होता है। जो इंटीरियर सर्कल है यानी कि जो रिम के अंदर है वो भी कंक्रीट का होगा या एस्फाल्ट या इसी तरह का कोई मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन वो स्लिपरी मटेरियल नहीं होगा, यानी कि ऐसा मटेरियल ना हो कि खिलाड़ी वहां पर ग्लाइड करे या रोटेट करे तो स्लिप उसका हो पाओ। तो इसलिए ये स्लिपरी जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इनसाइड डायमीटर आपको बताया है कि 2.135 होता है, इसमें 0.005 जो है उसका फर्क हो सकता है। शॉर्ट पट में भी यही पैमाइश रहती है और हैमर थ्रो में भी यही पैमाइश रहती है, जबकि जो डिस्कस थ्रो है उसका आगे हम पढ़ेंगे कि उसमें 2.50 मीटर इसकी जो इनर जो डायमीटर है वो होता है। तो तमाम लाइनों की मोटाई 5 सेंटीमीटर और जो दरमियान से सर्कल को करती है, दरमियान जाहिर करती है सेंटर, तो उसको 75 सेंटीमीटर जो लंबी लाइनें हैं वो दोनों तरफ लगाई जाती हैं। जो सरफेस है वो लेवल से वो 20 से 26 mm जो है वो लोअर होती है। जो हमारा अपर एज है रिम का, यानी कि जो इसका मतलब कि जो रिम लगाया जाता है वो सरफेस से थोड़ा सा ऊपर होता है, ऊंचा होता है। तो वो जो लोअर है उसकी सरफेस ग्राउंड लेवल जो है वो 20 से 26 mm जो है वो नीचे होता है। तो लैंडिंग सेक्टर आगे है, लैंडिंग सेक्टर का जहाँ पर गोला गिरेगा। तो गोला जिस जगह के ऊपर गिरना है आपको बताया कि उसका एंगल जो है वो 34.92 और इनकी तमाम लाइनें भी ये भी 5 सेंटीमीटर मोटाई होती है। अब 34.92 दर्जे का जो जाविया ये जो एंगल है ये लगाया कैसे जाता है। अगर तो आप कर रहे हैं ग्राउंड में मार्किंग, तो सबसे पहले जो हमने सेंटर है सर्कल का उसको लेना है। उस सर्कल से हमने 20 मीटर जो है वो आगे की जानब जाना है। 20 मीटर जब हम आगे की जानब जाएंगे तो 20 मीटर के पॉइंट के ऊपर 6 मीटर एक तरफ और 6 मीटर दूसरी तरफ, यानी कि टोटल कितना बन जाएगा 12 मीटर। 20 मीटर हम ग्राउंड के अंदर की तरफ जा रहे हैं और 12 मीटर का जो एरिया है वो होगा बाहर। तो वो जो 12 मीटर के जो दोनों तरफ 6-6 मीटर के निशान लगाए हैं उन निशान को आप बिल्कुल लाइन जो है हमारी है सेंटर लाइन सर्कल का जो मिड पॉइंट है सेंटर पॉइंट है उस लाइनों से अगर मिला देंगे तो ये पूरा पूरा आपका 34.92 का एंगल बन जाता है। पेपर के ऊपर आपने जब बनाना है तो आपने अपना जो स्केल है वो सेट कर लेना है कि मैं अगर 1 इंच लंबी लाइन लगा रही हूँ तो इसका मतलब ये मैं 5 मीटर लंबी लाइन लगा रही हूँ। तो आपने इसको इस तरह बनाना है। तो ये जो है वो 34.92 दर्जे का एंगल बनेगा। दोबारा बता देता हूँ कहाँ से जाना है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से हमने जाना है 20 मीटर आगे इधर। अब जब 20 मीटर यहाँ तक आएंगे तो इस 20 मीटर से 6 मीटर इस तरफ और इस 20 मीटर से 6 मीटर इस तरफ आएंगे। तो ये जब 6 मीटर आएंगे तो ये इस लाइन को इस जो पॉइंट है उसके साथ जो है मिला दिया जाएगा। ये तकरीबन आपका जो स्टाफ बोर्ड होगा उसके कॉर्नर जो एज है उसको लाइन जो है वो क्रॉस करके जाएगी। इन लाइनों के अंदर अंदर ये अगर 20 है तो 6-6 है, अगर 30 आगे चले जाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा और इसमें इजाफा 40 है
तो इधर भी 12, इधर भी 12, यानी कि उसी जो निस्बत है ये आगे हमारा जो सेक्टर है वो बढ़ता जाएगा। तो जो गोले का गिरना है वो जरूरी है कि इन लाइनों के अंदर अंदर गिरे। अगर इन लाइनों के बाहर जाता है या इन लाइनों के ऊपर गिरता है तो उसकी पैमाइश नहीं की जाती। तो जो उसके अलावा जो स्टॉप बोर्ड है इस्तेमाल किया जाता है, आपको यही से नजर आ रहा है स्टॉप बोर्ड है यहाँ पर। इसका जो कलर है वो वाइट होता है पूरा, और ये लगाया जाता है जब खिलाड़ी गोला फेंक रहे होते हैं तो उसका जो पाँव है वो इसके ऊपर वाले किनारे को टच नहीं कर सकता। इसके इनसाइड एज जो है उसको तो छू सकता है, पाँव अगर लगता है तो कोई मसला नहीं, अगर इसके ऊपर पाँव लगता है तो ये फाउल तस्वर किया जाता है। तो जो ये आपको स्टॉप बोर्ड की जो तस्वीर है वो भी नजर आ रही है कि ये बिल्कुल आर्क की तरह बना होता है। तो दरमियान से ये जो उसकी थिक मोटाई है, विड्थ है, ये 11.2 सेंटीमीटर होती है, और साइडों से इसकी जो विड्थ है वो 30 सेंटीमीटर होती है। और इस तरह इस कोने से लेकर इस कोने तक इसकी जो लंबाई है टोटल ये 1.21 मीटर से लेकर 1.22 मीटर के दरमियान हो सकती है। इसकी जो डेप्थ है जमीन में गहराई 10 सेंटीमीटर, 2 जो सेंटीमीटर है वो तकरीबन ग्राउंड लेवल के अंदर होती है, और तकरीबन 8 सेंटीमीटर जो है ये ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है। तो ये जो सर्कल का रिम है तो उसके आगे जो है उसको क्रॉस करके बिल्कुल स्टॉप बोर्ड है उसी के साथ साथ लगाया जाता है। तो आगे जो शॉट है, शॉट यानी कि जिस गोला जिसे फेंकते हैं उसका जो वेट है, मर्दों के लिए वेट 7.26 केजी होगा, 7 किलो 260 ग्राम, और जो खवातीन हैं उनके लिए 4 केजी का होता है। इसी तरह डायामीटर अगर देखा जाए शॉट का तो डायामीटर 11 से 13 सेंटीमीटर के दरमियान होगा, और फीमेल के लिए जो डायामीटर है वो 9.5 से 11 सेंटीमीटर के दरमियान होगा। ये जो गोला है लोहे का बना होगा या मेटल का, ब्रास का, तो इस तरह किसी भी जो मटेरियल है यानी कि ठोस मेटल उससे ये बना हुआ होता है, और इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल होती है, गोल होता है, और सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ होती है। उसके ऊपर कोई भी ऐसे पॉइंट नहीं बने होते कि उनके अंदर बंदा उंगलियां जो है वो अपनी फिक्स कर सके। तो ये शॉट होता है, ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, ये सेक्टर है। आप देखिए कि ये फ्लोर है, ये इस ग्राउंड बाहर वाला जो ग्राउंड लेवल है उससे नीचे है। जैसे आपको बताया था कि जो इसका सरफेस है वो नीचे होगी। ये आपको लोहे का जो रिंग है, रिम जिसे कहा जाता है, वो नज़र आ रहा है। ये 6 mm इसकी थिकनेस होती है। उसके बाद आगे ये आपको व्हाइट कलर का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको स्टॉप बोर्ड पड़ा नज़र आ रहा है, इसकी आपको डायमेंशन बताइए। और ये आगे लाइन जो जा रही है, ये लाइन क्या है, हमारा सेक्टर है, लैंडिंग सेक्टर है। जब ये खिलाड़ी गोला फेंकेगा तो इस एरिए के अंदर अंदर अगर गोला गिरेगा तो उसको पैमाइश उसकी की जाएगी। अगर जो गोला है वो इन लाइनों के ऊपर या इस एरिए में गिरता है, बाहर गिरता है, तो उसकी पैमाइश नहीं की जाएगी। तो शॉर्टपट के जो कवानीन है कि कैसे फेंकना है, तो सबसे पहले शॉर्टपट, डिस्कस, हैमर थ्रो के जो इम्प्लीमेंट है यानी कि जो भी चीज़ हमने फेंकनी है उसको सर्कल से फेंका जाएगा। सवाए जेवलिन थ्रो के नेज़ा जो है वो रनवे से फेंका जाता है, जबकि शॉर्टपट, डिस्कस और हैमर जो है ये हमेशा सर्कल से फेंके जाते हैं। तो इन द केस ऑफ ट्रायल मेड फ्रॉम अ सर्कल, जो एथलीट है वो अपनी जो ट्राई का आगाज है वो स्टेशनरी पोजीशन से करेगा कि खिलाड़ी यहाँ पर अंदर दाखिल हुआ है तो एक दफ़ा अपने जो जिस्म है उसको साकन करेगा। ये नहीं है कि खिलाड़ी पीछे से भागता हुआ आया है, इस दायरे के अंदर पहुंचा और आते ही उसने गोला फेंक दिया, ऐसे नहीं। एक दफ़ा जो आपका जो सर्कल है उसके अंदर आपकी जो पोजीशन है उसका बिल्कुल साकन होना ज़रूरी है। उसके बाद जो अपनी ट्राई का आगाज़ करता है, अपनी जो थ्रो है, तो एथलीट को अलाउ है कि वो रिम को टच कर सकता है, लेकिन कहाँ से, इन साइड, अंदर वाली साइड से रिम को भी टच किया जा सकता है, अंदर वाली साइड से ही स्टॉप बोर्ड को भी टच किया जा सकता है। अगर आप स्टॉप बोर्ड के ऊपर पाँव लग जाता है, फाउल है। आप रिम के बाहर आ जाते हैं, इस दायरे के आपका पाँव छू जाए
تو کیا ہو جائے گا, فاؤل ہو جائے گا. تو جو گولا ہے اس کو پھینکا جاتا ہے, ایک ہاتھ سے پھینکا جاتا ہے اور اس کو پٹ کیا جاتا ہے شولڈر سے, یعنی کہ شولڈر کے بالکل اوپر, اور اسی جو ورٹیکل لائن ہے اس کے ساتھ رکھا جاتا ہے. اسی طرح آپ کی جو کونی ہے وہ بھی ہاریزونٹلی بالکل ہوگی کہ آپ پیچھے نہیں کونی کو لے کر جا سکتے, بالکل آپ کا جو نیک یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کان ہے اسی کے بالکل سیدھ میں آپ کے ہوگا. تو ایتھلیٹ جو ہے وہ at the time an athlete takes a stance in the circle to commence a put, the shot shall touch or be in close proximity to the neck, کہ جو نیک ہے اس کے بالکل گردن کے ساتھ رکھا جاتا ہے, اور دا چین یا جو ہماری تھوڑی ہے اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے, اور ایک ہاتھ سے پھینکا جاتا ہے, ایک ہی ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے, اور آپ کے اس ہاتھ کی جو پوزیشن ہے وہ نیچے شولڈر لائن کی, شولڈر لائن جو ہے اس کے نہ نیچے ہوگی اور نہ ہی اس سے پیچھے ہوتی ہے. تو دو طریقے ہیں گولا پھینکنے کے جو کہ آج کل عمومی طور پر جنرلی استعمال کیے جاتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں گلائڈنگ اور دوسری کو کہتے ہیں سپن یا روٹیشنل میتھڈ. تو مقصد دونوں کا ایک ہی ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کو یا گولا جو پھینک رہے ہیں تو میکسیمم جو فارورڈ ویلاسٹی ہے اس کو حاصل کرنا ہے, اور گولے کو میکسیمم نہ ہی بالکل آپ 90 کے اینگل کے اوپر پھینکیں گے, وہ تو آپ کے بالکل سر کے اوپر جائے گا اور اوپر سے نیچے آ جائے گا. اور اگر آپ 15 کے اینگل پہ یا 20 کے اینگل کے اوپر پھینکیں گے تو وہ بھی بالکل آپ کے جسم سے نیچے آ کے, یعنی کہ جسم کی جو ہائٹ ہے اس سے نیچلی طرف آئے گا. تو جو گولا ہے وہ جو بالکل درمیان ہے, یعنی کہ 90 کا اور 0 کا درمیان کیا بنتا ہے تقریباً 45, تو اس اینگل کے اوپر 44 پوائنٹ سم تھنگ اس اینگل کے اوپر جو گولا ہے وہ ریلیز کیا جاتا ہے, تاکہ فارورڈ ویلاسٹی جو ہے, فارورڈ جو اس کی ہے پوزیشن وہ میکسیمم ہو سکے. کیونکہ اگر آپ 90 یا 60 کے اینگل کے اوپر پھینکیں گے گولا اونچائی کی طرف تو جائے گا, آگے کی طرف نہیں جائے گا. تو دو میتھڈ ہے, گلائڈ میتھڈ سب سے, تو گلائڈ ٹیکنیک جو ہے 1951 سے استعمال کی جاتی ہے, اس کو پیری اوبرائن ٹیکنیک بھی کہا جاتا ہے. پیری اوبرائن جو تھا یونائٹڈ اسٹیٹس سے اس کا تعلق تھا, اس نے اس ٹیکنیک کا استعمال کیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پٹر ہے یعنی کہ جو گولا پھینکنے والا ایتھلیٹ ہے اس کا جو منہ ہے وہ بیک سائڈ کی طرف ہوتا ہے, یعنی کہ جس طرف اس نے گولا پھینکنا ہے تو بیک سائڈ کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے, اور اپنے جسم کو وہ روٹیٹ کرتا ہے 180 کے اینگل کے اوپر اور پورا گھومتا ہے سرکل میں, اور اس کے بعد جو گولا ہے اس کو اچھال دیتا ہے. اس ٹیکنیک کو لینئر موومنٹ بھی کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی دفعہ 180 کے اینگل کے اوپر روٹیٹ کرتے ہیں اور بالکل سیدھی لائن میں وہ جاتے ہیں اور آپ گولا پھینکتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں گلائڈ ٹیکنیک. دوسری ہے روٹیشنل, تو اس میں جیسے آپ کو نام سے بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا سپن یا روٹیشنل, کہ آپ اس میں دائرے کے اندر گھومتے ہوئے 2 سے 3 4 چکر جو ہے وہ اس کے اندر اندر روٹیٹ کرتے ہیں, تاکہ جو میکسیمم آپ باڈی ویٹ ہے وہ گولے کے اوپر جو ڈال سکیں, یعنی کہ جب ہم پش کر رہے ہوں گے پٹ کر رہے ہوں گے گولے کو تو اس کے اوپر ہمارا جو میکسیمم ویٹ ہے وہ ٹرانسفر ہو, تاکہ جو فاصلہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جا سکے. تو جو بگنر ہوتے ہیں ان کے لیے تو گلائڈ ٹیکنیک ہی ہے. جو روٹیشنل میتھڈ ہے اس کے لیے آپ کی پریکٹس کا ہونا ضروری ہے. تو سپن جو ٹیکنیک ہے اس کو روٹیشنل ٹیکنیک کہا جاتا ہے, اور پہلی مرتبہ 1950 میں یہ ٹیکنیک یورپ میں استعمال کی گئی, لیکن اس کو کوئی کیونکہ ٹف ہے تو 1970 تک اس کی طرف کوئی خاص توجہ بھی نہیں دی گئی. 1972 میں الیگزینڈر نے پہلا جو یو ایس ایس آر کا جو یعنی کہ رشین ریکارڈ جو ہے اس نے سیٹ کیا اس طریقہ کار کے تحت گولا پھینک کے, اور اس میتھڈ کو جو انوینٹ کیا تھا اس کے کوچ نے وکٹر نے. سپن جو ہے انوالو ہے روٹیٹنگ لائک اے ڈسکس تھرور اینڈ یوزنگ روٹیشنل مومنٹم آف پاور. اب ڈسکس تھرور کیا کرتا ہے, وہ کھڑے کھڑے نہیں پھینکتا, وہ سرکل کے اندر پورا روٹیٹ کر رہا ہوتا. تو اسی طرح گولا پھینکتے بھی روٹیٹ جو کرنا ہے روٹیشنل میتھڈ, تو وہ کس مقصد کے لیے, مومنٹم فار پاور حاصل کرنے کے لیے. تو 1976 میں جو الیگزینڈر تھا اس نے 1976 میں جو پہلی مرتبہ ورلڈ ریکارڈ سیٹ کیا 22 میٹر تھرو یہ گولے کو پٹ کر کے 72.18 فٹ کے فاصلے کے اوپر, اور اس نے جو سٹائل اپنایا تھا یہ سپن سٹائل تھا. اس وقت پھر اس جو
तरीका है, इसको लोगों ने फॉलो किया जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एथलीट हैं, तब उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो देना शुरू की और इसको यानी कि आप मोस्टली जो है वो रोटेशनल मेथड भी इस्तेमाल करते हैं और ग्लाइड जो है वो भी ग्लाइडिंग का मेथड है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको इस तस्वीर से जो है वो वजाहत हो जाएगी कि ग्लाइडिंग में देखिए कि ये खिलाड़ी की सबसे पहले नंबर के ऊपर जो ऊपर वाली तस्वीर है ये पूरा एक पैटर्न है कि खिलाड़ी किस तरह मूव करता है। तो आप देखें कि उसका जो बाजू है ये फ्री हैंड है जो उसने नीचे की तरफ छोड़ा हुआ है, जबकि जो गोला है उसकी दूसरी साइड के ऊपर बिल्कुल गर्दन के साथ मौजूद है। तो रुख जो है वो बैक साइड की तरफ है। उसके बाद वो मोमेंटम अपना हासिल करता है, इस पाँव को वो क्या करता है मूव करता है यकदम इस तरफ और इस पाँव को वो आगे की तरफ लेकर जाएगा। तो ये क्या है 160 के एंगल के ऊपर वो रोटेट करता है, यानी कि आपको नजर आ रहा है बॉडी पोजीशन से कि वो किस तरह, ये यहाँ पर आपको वाज़ेह कि गोला उसका ये है और जो फ्री हैंड उसने छोड़ा हुआ था वो मूवमेंट करता करता यहाँ तक पहुंच चुका है। तो ये मिड है, तो यहाँ से फिर उसका जो फेस है वो आगे की तरफ आना शुरू करता है। ये देखें वो 45 के एंगल की तरफ उसको अपनी बॉडी जो है उसको सेट कर रहा है और उसी पोजीशन के ऊपर जो है अब जब वो उसने उसको एंगल को सेट किया तो जो आप उसकी फ्रंट बाजू है उसको वो लोअर करता आएगा और जो पिछला बाजू है उसको उसी एंगल के ऊपर आगे की तरफ जो है वो पुश करेगा और धकेलेगा गोले को। तो ये आपके सामने जो है उसका है। तो जो स्पिन मेथड है उसमें जो खिलाड़ी है उसमें भी रुख जो है वो पीछे की तरफ है, लेकिन बॉडी पोजीशन चेंज है कि खिलाड़ी बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। एक समझे कि ये अनविजिबल लाइन होती है उसमें पिवट फुट एक बना लिया जाता है और उसके ऊपर जो खिलाड़ी है वो घूम रहा होता है, एक पिवट बनता है, उसके बाद वो जैसे ही अगला पाँव लेकर जाता है तो अगला पाँव पिवट हो जाता है, पिछला घूमता है। तो इस तरह जो खिलाड़ी है वो रोटेट दायरे के अंदर, ये आपको नजर आ रहा है कि दायरे के अंदर वो रोटेट कर रहा है और रोटेट करते हुए जब मैक्सिमम वो सर्कल करते हुए रोटेशन करते हुए जो मोमेंटम हासिल कर लेता है तो तब वो ये पोजीशन इख्तियार करता है और गोले को फ्रंट की तरफ आते हुए वो गोले को हवा में फेंकता है। तो ये दो टेक्निक हैं, ग्लाइड टेक्निक और स्पिन टेक्निक। तो फाउल क्या है आपको बताया कि जो अगर जो गोला है वो दायरे के अंदर से फेंका जाएगा, अगर दायरे के बाहर पाँव लगता है या थ्रो से पहले वो दायरे के ऊपर या आपका जो स्टॉप बोर्ड है उसको छू ले या रिम को छू ले तो उस सूरत में क्या हो जाएगा फाउल हो जाएगा। उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा ग्राउंड बाहर जो रिम के बाहर है उसको छू नहीं सकता। तो उसके अलावा गोला जब वो फेंकेगा तो एक हाथ से फेंकेगा, अगर दो हाथों से फेंकेगा तो भी फाउल है। तो गोला जो है वो सर्कल से फेंका जाता है, रनवे से नहीं फेंका जाता कि खिलाड़ी पीछे से भाग के आए, तो इसलिए उस सर्कल के अंदर रहते हुए ही उसने गोला जो है वो फेंकना है। उसके अलावा और क्या है कि जो गोला फेंकना है उसके बाद आपने जब वापस निकलना है उस सर्कल से तो जो सर्कल है उसकी बैक साइड की तरफ से आपने बाहर आना है। अगर आप जो रिम है उसके जो स्टॉप बोर्ड वाली साइड की तरफ बाहर निकलेंगे तो वो क्या हो जाएगा फाउल हो जाएगा। तो खिलाड़ी अभी गोला हवा में है उससे पहले जिस्म का उसका कोई हिस्सा रिम से बाहर निकल आया, बाहर बैलेंस अपना कायम नहीं रख पाया और बाहर निकल आता है तो ये भी फाउल है। बैलेंस भी उसने अपना कायम रखना है और सेक्टर के अंदर भी रहना है। तो अगर खिलाड़ी जो है वो आफ्टर ईच थ्रो इम्प्लीमेंट शैल बी कैरिड बैक टू द एरिया नेक्स्ट टू द सर्कल और रनवे एंड नेवर थ्रोन बैक, के जो अगली ट्राई है जो अगला एथलीट है वो उधर से गोला खुद उठाकर लेकर आएगा, ये नहीं है कि उधर से खड़ा होकर इधर की तरफ फेंक दे, तो ये क्या हो जाएगा अदरवाइज फाउल हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो है वो कैसे मेजर किया जाता है थ्रो इवेंट में तमाम में, चाहे वो गोला है या थाली है, तो डिस्टेंस जो है रिकॉर्ड किया जाता है सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर में पॉसिबल नहीं आ रहा तो फिर मिलीमीटर में, यानी कि जो फासला है वो नोट किया जाता है। मेजरमेंट की कहाँ से जाती है, जो चीज़ आपने फेंकी है गोला फेंका है तो उसका जो ऑब्जेक्ट नज़दीक तरीन किनारा यानी कि पहला जो टच हुआ है गिरा है ग्राउंड के ऊपर तो उसने जो निशान छोड़ा है वो नज़दीक तरीन किनारे से लेकर जो आपका सर्कल का सेंटर है वहां तक फीता जो है वो रखा जाता है और पैमाइश जो है वो देखी जाती है। तो वैलिड ट्रायल अगर होगी तो तभी ये पैमाइश की जाएगी, अगर वैलिड ट्रायल नहीं होगी तो ये पैमाइश नहीं की जाएगी। वैलिड ट्रायल आपको बताया कि कैसे पता चलेगा, सफ़ेद रंग की झंडी जब जज जो बैठा है वो बुलंद करेगा
تو اس کا مطلب کیا ہے, یہ ویلڈ ٹرائی ہے. تو شارٹ ڈسکس یا ہیمر میں اس کا جو یہ جب گرتا ہے سرکمفرنس, تو اس جو ان سائڈ سرکمفرنس ہے یعنی کہ ان سائڈ سیکٹر کی طرف ہے, اس کنارے سے لے کر سینٹر آف دی سرکل تک جو گمائش ہے وہ کی جاتی ہے. تو یہاں تک اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے